speak. And now even their relatives will not be able to do so in Rajasthan. I'm serious, ladies and gentlemen. The hallowed halls of the Rajasthan Assembly have passed a dramatic piece of legislation that essentially deals a death blow to dissent. It's called the Honor of Dead Body Bill. And let me tell you, there's nothing honorable about this bill. It essentially outlaws protest by a grieving family with a body by their side. If you do, it's 2 years in prison for you. If a non-family member joins these protests, then the imprisonment term is 5 years. Can you imagine that? Say your 17-year-old daughter goes missing. All your appeals to the police falls on deaf ears. You set yourself on fire in protest. Your family refuses to cremate you and they hit the streets seeking justice. They are protesting. This is a desperate cry. It's a basic right that the constitution of this country gives them. But the Rajasthan government's harebrained and illogical law outlaws that protest. This example I gave you is a real one. And why is protest being outlawed? I'll come to that in just a bit, because that is the most shameful and shocking part of this entire saga. Now, under the bill's bewildering provisions, you can be imprisoned for a year if you fail to claim the body of your loved one. The district administration, in fact, has been granted sweeping powers, the ability to seize the body and conduct the last rites if you don't. Needless to say, this is a first of its kind bill. And the reasoning behind it is as shocking as absurd. Outrageous, actually. The Law Minister of Rajasthan says that people have made a dhanda of using dead bodies to demand jobs and compensation from the government. Dhanda is a word that he has used. This is the Law Minister of Rajasthan, ladies and gentlemen. Is he oblivious to the hollowness and pain that engulfs a family when they lose someone they love? Would a family, rich or poor, defile their dead under any circumstances? What was the minister even thinking before he made a comment like this on the floor of the House? Listen in to what he said. परिजन द्वारा मृत शरीर का कब्जा नहीं लिया जाता है तो 1 वर्ष का सजा दी गई। मृत शरीर का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए करता है तो 2 वर्ष की सजा है। तो ये सब सजाएं इसीलिए रखी गई हैं कि ये जो जिस प्रकार का लोगों ने धंधा बना रखा है और जिस प्रकार का दबाव डाल करके इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं उस पर रोक लगे और ताकि जो है परिजन भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन की इजाजत न दें। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को पारित किया जाए। That is Chief Minister Gehlot's top minister calling protests demanding justice for the dead dhanda. Dhanda. Let us contrast what Dhariwal is saying with what the brother of a late tea vendor called Ram Prasad Veena is saying about this bill. Ram Prasad was not cremated by his family members until authorities assured them of action against a cabinet minister who was blamed for his suicide. Listen into what he's saying. महावीर जी, सरकार एक बिल लाई है और सरकार का ये कहना है कि अगर आप बॉडी के साथ में प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें जो उसकी डिग्निटी है उसके साथ में प्रशासन को अब पूरा अधिकार है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद क्या, इस पे क्या बोलेंगे आप? सर, मैं ये चाहता हूँ कि है ना, ये सरकार ने काफी गलत कदम है मेरी नजर में, क्योंकि पहले उस परिवार जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद सुसाइड कर सके, उनके ऊपर जो सारे जब रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, जब वो इधर से भागा दौड़, कानून में हम नहीं गए, हम हर जगह गए हुए, हम कानून में हाथ जोड़े, हर सारा काम करा। और ये जो आप कह रहे हैं कि अभी लाश अगर ये आप डेड बॉडी ले जाएंगे तो उसके आदमी के पास कुछ नहीं बचेगा। अभी हम वो प्रदर्शन नहीं करते, ये नहीं करते। हमारे भैया 6-6 दिन, सर हम 6-7 दिन हमने खाना, हमारे धर्म में ये है कि जब तक कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता सर, जब तक खाना नाना नहीं खाते। तो
ये देख लीजिए हम 6 दिन कैसे बैठे, कोई नहीं चाहता सर, जब उसको जब न्याय नहीं मिलता तो इस चीज के लिए सरकार के अगेंस्ट खड़ा, बाकी सरकार के सामने कोई नहीं खड़ा होता। हमारे पब्लिक, हमारे जनता ने न्याय करा है। अगर वो जनता को जब ये सारे चीज रूल्स हो आ जाएंगे तो वो जनता किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब जनता के कोई न्याय नहीं रहेगा, जनता में मतलब अंधकार हो जाएगा। अगर आपके पास उस टाइम आप शव के साथ प्रोटेस्ट नहीं करते तो आपको लगता है आपकी मांगे मानी जाती? नहीं सर, हमारी मांगे क्या, मैं कह रहा हूँ सर, हमारा जनता ने न्याय कर, जनता के बगैर मैं मानता हूँ जो सरकार ने जो निकाला है ये कि आप लाश, मतलब आप पार्थिव शरीर के साथ धरना नहीं कर सकते और मतलब सीधी जेल है। सर ये हमारे साथ होता तो हम कुछ नहीं रहते सर, हम मर जाते, मतलब हमें मरना ही पड़ता आगे पीछे। कितनी लाश उठाते, जब कोई नहीं रहेगा तो उसको तो कोई भी वैसे मतलब लावारिस इलाज करके वैसे जला देती है सरकार। वैसे ही वो होता, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, हमारी कौन सुनता, हमारी कोई नहीं सुनता सर। The BJP is in the opposition in Rajasthan, and this is what they are saying. एक डेड बॉडी को लेकर के बैठने के लिए क्यों मजबूर होता है? उस मजबूरी के, उस मजबूर आदमी की, मजबूर परिजनों की आवाज सुनाने का माध्यम क्या होगा? पहले ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म तो आप बनाइए। वो जाकर के कहां गुहार लगाएगा? अगर 100 घटनाओं में से 50 घटनाएं ऐसे होती है जहां वास्तव में ऐसे हालात हैं, सरकार, पुलिस, प्रशासन काम नहीं कर रही है और सुरक्षा न देने के कारण से इस तरह की घटनाएं हुई है। इस तरह के काले कानून बनाने से पहले उनको कानून की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में विधानसभा के पटल पर विस्तार से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह का कानून बनाना चाहिए। देखिए, मैंने जो अखबारों में पढ़ा कि लोग 7 दिन तक, 6 दिन तक बॉडी को लेकर कॉम्पनसेशन की आशा में बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखिए कानून बनाने से नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, उसके परिवार में मौत हो गई, तो उल्टे आप उसको भी जेल भेज देंगे क्योंकि आप 3 दिन से बॉडी को लेकर बैठे हुए हैं। उसको समझा कर, बुझा कर आप उसको प्रयास करें कि समझा कर वो उठ कर चला जाए और उसको कॉम्पनसेशन अगर देने का पड़ा तो दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, और कानून से आप इसको रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय लोग सेंटिमेंट में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, इमोशनल होते हैं, और उनको लगता है मेरे घर का आदमी चला गया तो मुझे न्याय मिल जाएगा अगर मैं धरने पर बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर किसी प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है। A quick chat with my guest this evening. Sumit Chaudhary is MLA and he's the spokesperson of the Rajasthan BJP. We have Swarnim Chaturvedi, spokesperson of the Congress Party, and KV Dhananjay is advocate of the Supreme Court. Swarnim Chaturvedi, obviously the first question, Namaskar, is going to come to you. What was your minister even thinking? Chaturvedi ji, ये आप लोग मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैसे कह सकते हैं कि डेड बॉडीज को राजस्थान में लोगों ने धंधा बना लिया है? आपके परिवार से कोई जाए उसका क्या मतलब होता है और परिवार पे क्या बीत रही, एक मिनट चतुर्वेदी जी, परिवार पे क्या बीतती है आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, और जो नहीं जानते अभी उन्होंने हमारे ब्रॉडकास्ट में देखा है। आप क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना अब राजस्थान में अलाउड ही नहीं है? जाइए सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 हमें राइट देता है प्रोटेस्ट करने का, बोलिए कि उस अमेंडमेंट को बिल्कुल स्क्रैप कर दें। हो क्या रहा है राजस्थान में? देखिए श्रेया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने किसी भी प्रोटेस्ट को कर्व नहीं किया, प्रोटेस्ट करने के राइट को भी कर्व नहीं किया, बल्कि हम तो एक बात कहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करता है, हम उसको एक ऑर्नामेंट मानते हैं, ऑर्नामेंट ऑफ द डेमोक्रेसी और समबडी प्रोटेस्ट। लेकिन हमारे जो बिल है, बिल का नाम ही ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल है। अगर कोई भी डिसरेस्पेक्ट शो करता है डेड बॉडी के साथ, उसके लिए यह है। और सबसे बड़ी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि धंधे वाली बात, हमारे मिनिस्टर ने क्या कहा, वो ये कहा कि जो डेड बॉडी है उसका भी अधिकार है, उसको भी एक सही तरीके से सभ्य समाज में जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है वो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, अपनी जगह अखबारों की सुर्खियों में बनाने के लिए, उस केस के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए, जब डेड बॉडी को लेकर के परिवारजन नहीं, परिवार जो पॉलिटिशियन से जब बैठ जाते हैं 7-7 दिन तक, उसमें परिवार का उसमें उस बॉडी पर अधिकार नहीं रहता और वो बैठ करके जब अपनी राजनीति करते हैं, तो ये गलत है। इसलिए गलत है कि अगर किसी को कंपनसेट करना है तो उसके लिए ऑलरेडी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यहाँ पर राजस्थान में है और उसके तहत हम कंपनसेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
पॉलिटिशियंस को क्या अधिकार है एक डेड बॉडी को लेकर के प्रोटेस्ट करने का? आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने पे कोई रोक नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं भी करते हैं, हमारी सरकार ने कभी उसको रोका नहीं, बल्कि हमने बीजेपी को इजाजत भी दी है। और जब बीजेपी अगर ये कहती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने शासनकाल में किस तरह से जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो 30 केस उन्होंने भी दर्ज किए हैं इसी तरह के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तब भारतीय जनता पार्टी का जो आज ये इतनी बड़ी अच्छा। बड़ी बातें कर रहे हैं कि डेड बॉडी को लेकर के आदमी कहा जाएगा, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो उस वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों किए थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में प्रोविजन है कि एक सभ्य समाज में जिस तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसको उसका अधिकार मिले डेड बॉडी को, और अगर कोई डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है तो सरकार उसकी अंतिम संस्कार करे, उस बॉडी को प्रिजर्व करे, डेटा उसका रखे। और ये जब चतुर्वेदी जी, जब कोई क्लेम नहीं करे, अनक्लेम्ड बॉडी है, मान लीजिए चतुर्वेदी जी, अब 2 फॉलोअप क्वेश्चन है। वो मैं समझ गई, वो मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया है। मेरे पे आई हैव नो फाइट विद यू ऑन दैट कि अगर कोई डेड बॉडी को क्लेम नहीं कर रहा है तो सरकार उसको क्रिमेट कर देगी। आई डोंट हैव अ फाइट विद यू ऑन दैट। आप मुझे कह रहे हैं ये राइट टू प्रोटेस्ट को कर्ब नहीं किया जा रहा है, ये जो है डिग्निटी टू द डेड दिया जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए चतुर्वेदी जी कि कोई भी परिवार अगर अपना भाई खोए, अपने फादर खोए, अपनी माँ खोए, अपनी बेटी खोए, क्या वो उसकी डेड बॉडी को सुर्खियों में आने के लिए इस्तेमाल करेगा? आप मुझे पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने धंधा बना दिया है डेड बॉडीज के साथ बैठ के फोटो खिंचाने का। मुझे बताइए, आपके लॉ में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई फैमिली मेंबर अपने किसी परिवारजन की डेड बॉडी को लेकर प्रोटेस्ट में बैठता है तो उसको 2 साल की इंप्रिजनमेंट है। यहां पॉलिटिशियंस की तो बात नहीं कर रहे हैं आप, यहां पे तो आप परिवारजनों की बात कर रहे हैं सीधा सीधा। 2 साल की परिवारजनों के लिए, 5 साल की जो कि परिवारजन नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो परिवारजन नहीं है उनके 5 साल के लिए, और परिवारजन को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट आप करने का एक तरीका होता है। आप आइए, सरकार से जो कंपनसेशन चाहिए उसकी मांग करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप बॉडी लेकर के किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके किसी भी सरकार को ब्लैकमेल करने का या उसको दबाव में लाने का काम करें। अगर आपकी मांग सही है, उचित है, किसी प्रोविजन में आती है तो निश्चित रूप से कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ देखा राजस्थान में जिस कारण नहीं, एक गरीब आदमी क्या करेगा? देखिए, बिल्कुल सरकार के सामने आप मांग रख सकते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? आप मुझे बोल रहे, आप इसको ब्लैक, चतुर्वेदी जी एक बात बताइए, आप इसको क्या बोल रहे हैं? आप चतुर्वेदी जी इसको बोल रहे हैं ब्लैकमेल। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक गरीब आदमी क्या करेगा? आपने सुना जो सब्जी वाला है जिसने सुसाइड कमिट किया, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनट चतुर्वेदी जी, बात सुन लीजिए, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगी। ये शो ऐसा नहीं है जहां हम किसी को बोलने नहीं देते। आप मुझे बताइए कि एक गरीब सब्जी वाला, उसके भाई ने सुसाइड कमिट किया है क्योंकि वो कह रहा है कि आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने आप उस पर प्रेशर किया है, उसके परिवार को जस्टिस चाहिए, उसके परिवार की आप नहीं सुन रहे, आपकी सरकार नहीं सुन रही, आपकी पुलिस नहीं सुन रही। वो परिवार क्या करेगा? आप मुझको बताइए। एक माँ जिसकी 17 साल की लड़की है, वो मिसिंग है, पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही, प्रोटेस्ट में उसने अपने आप को आग लगाई, उसके बाद अगर उसका परिवार उसकी बॉडी को लेके प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसी के घर में कोई मरा है, हमें पता है कि क्रिमेट करना हिंदू धर्म में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर परिवार नहीं कर रहा तो वो धंधे के लिए नहीं कर रहा चतुर्वेदी जी, या वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसको पता है कि सिस्टम उसकी सुनेगा नहीं। ये ब्लैकमेल नहीं होता, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ ब्लैकमेल, दिस इज अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस सर। देखिए, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि हेल्पलेस कोई भी नहीं होता। अगर पुलिस में केस दर्ज है, किसी ने भी अगर उसको किसी को मजबूर किया है तो निश्चित रूप से कानून में उसके लिए जगह है, उसको डेड बॉडी रख करके प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान में हमने ये देखा कि बीजेपी के एक सांसद एक बार नहीं 2 बार वहां इस तरह से प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह की भी स्थिति आई है कि दौसा जो हमारे राजधानी के बिल्कुल समीप है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, एक डॉक्टर ने इलाज किया, उसके बाद डेथ हो गई, डेड बॉडी को लेकर प्रोटेस्ट किया। हमारे को बड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने जो दबाव बनाया, उसके कारण महिला चिकित्सक जो है उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह
के प्रोटेस्ट नहीं चलेंगे। प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, धरने पर बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, पूरे देश भर में होते हैं। कोई भी धरना और प्रदर्शन डेड बॉडी को लेकर के नहीं होता, डेड बॉडी रख करके नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो न्याय के लिए सब लोग साथ हैं। लेकिन अगर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के एमएलए या पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री अगर डेड बॉडी को लेकर के साथ बैठते हैं, वहां पे धरने बैठते हैं, 7-7 दिन आकर के आप किसी पब्लिक प्लेस पर अगर बैठते हैं, ये गलत है, गलत है। न्याय दिलाइए, न्याय मिलेगा। न्याय के लिए सब जाते हैं। मान लीजिए किसी ने गलत किया तो बिल्कुल उसके लिए भी मैकेनिज्म है। आप अगर स्टेज पर एक लेवल पर पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता और कि सिस्टम डेड ना बॉडी को चतुर्वेदी कितने जी, दिन रखेंगे। उसका सम्मान करना सबके लिए आवश्यक है, और जो सम्मान नहीं करता वो गलत है। सम्मान तो सबसे ज्यादा सम्मान तो सबसे ज्यादा परिवार करेगा ना चतुर्वेदी जी। सरकार नहीं, देयर इज नथिंग ऑनरेबल अबाउट इट। सबसे ज्यादा सम्मान तो डेड बॉडी का उसका परिवार करेगा ना। आपने तो परिवार को आउटलॉ कर दिया। परिवार अगर डेड बॉडी के साथ प्रोटेस्ट में बैठ गए, आप तो खुद कह रहे हैं कि 2 साल उसको जेल मिलेगी। अगर आपने पॉलिटिशियंस, अगर आप कह रहे हैं ये पॉलिटिशियंस हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए डेड बॉडीज के साथ बैठ जाते हैं, तो आपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ बिल बनाना था। ये तो आपने आम जनता, सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री के खिलाफ बिल बनाया है ना। सुमित चौधरी, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इज सेइंग। Shreya, first of all, I will say this is a very draconian bill which has been brought by Rajasthan government. It's a Rajasthan honor or dead body bill. It's not that way. And who has brought this bill? A law minister who is second in the cabinet and who says what CM Ashok Gehlot says. He says dhanda bana rakha hai. This is not new. This is the same minister who in last assembly during the budget session has said, when it was raised about that Rajasthan has become number 1 in rapes in India, he said that Rajasthan mardon ka pradesh hai. This is very unfortunate. You have such a law minister who says this on the floor of house. Why Rajasthan is number 1 in rape. You have the same minister who says is dhanda bana rakha hai. It's a really disgusting part of a minister to say like this. You see somebody whose kin has died, whose near and dear has died. How can you think of why will he protest when he will protest only when he thinks he is in a deep pain. And the pain, many instances, somebody, a poor person who is working as a laborer in a lineman, and on all the GSs you have private people. Somebody has died. What will the laborer get the compensation? No, government won't give. Chaudhary ji, if people protest, then at least the laborer gets the compensation, 5 lakh, 10 lakhs. You see, when some grievous murder has been committed, police they never work. People when go on protest, police really work and they try to curb the criminals. This is what we are seeing it. We are seeing people dying, so many but people. Sumit Chaudhary ji, you should look at the irony. No, your outrage, no, 1 minute. Your outrage is justified, but is it a bit hypocritical? Given that under your regime, under the BJP regime as well, people protesting with dead bodies have been booked? हुआ है ना आपकी सरकार के अंदर? I'm saying that people and families who have protested with dead bodies have been booked. Then if everyone in democracy has a right to protest, then why were people in your regime booked? I don't think anybody was booked with reject. Give me a minute. I have 2 callers with us. But there was no special law. This was a law. Yes, there were. Yeah, there was no law, but people were booked. There was no law during the BJP government in Rajasthan, but people were booked. That is also the reality of the situation. Can I quickly, Mr. Chaudhary, give me a minute here, go across to 2 callers who are calling us. Captain Jakpal is calling us from Rohtak. Good evening, Captain. Please go ahead. Shreya, you know what was the issue? That there was a tragedy and family wanted to be compensated. They should have been dealt firmly and compensated. No new law is required. And now when they say Dhanda bana rakha hai, 2 MLAs behind the minister, they are grinning to the glory. And Chief Minister, when comes out of the assembly, he as if he has won a war. Because most of them either have sold their conscience or do not have spine. And if they have, they cannot display. That is the political requirement to come up. They are not fringe elements. They do this and say this because they come in the limelight and they are to say yes to every stupid thing. Most disgusting. And my second humble advice to you is improve your diet and don't be thick-skinned.
sensitive reporter cannot survive. Thank you. Thank you, sir. Noor, you're calling us from Mumbai. Please go ahead. Good evening. Yes, ma'am. Hi, clear. Hi, Noor. Go ahead. बड़ा बेहुदा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, बड़े और सीए जी बड़ा बेहुदा स्टेटमेंट दिया इनको. ही शुड रिजाइन इमीडिएटली या फिर लोगों से माफी मांगे हो. हेलो. Even I think so. Even I think so, Noor. Thank you very much. आप हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद. आपकी आवाज सुनी मैंने. You know, these are elected representatives. These are people we send to parliaments and legislatures and assemblies to represent us. KV Dhananjay, the least we can expect from them, is some empathy. In Rajasthan's case, it seems that has gone completely missing with this absurd and harebrained law. Very true. And it's very unfortunate. Far more than what a lawyer could say on these aspects. I think a common man is the best person to voice his or her concern over a law like this, because nobody in the right minds would make a law like this. And people who are learned in the law, the first thing they would know is that law has its own limitations. And the government here in Rajasthan, the legislature, in fact, is trying to breach those limitations. If somebody wants to know how to make a law that will make people rebel and then disobey it, you would make a law like this. That's what the Rajasthan government has done. There's no place for a law like this in any democracy, in any system of decency. Now, people would not perform the last rites of a dead body only in the most extreme situations. And if a government if it does not want to listen to people on why they are taking this extreme measure of bringing a dead body to a demonstration, then that government loses the moral authority to rule. Now, what the Rajasthan government has done is, perhaps this might have been acceptable in the 15th or the 16th century when governments were ruling by divine power, by prerogative of divine power. And if the Rajasthan government feels it's too much for it to see sites like this, then they should simply, whichever is the political party, they should just resign and go home. Nobody is forcing them to do whatever it takes to be in power. If being in power means that they can't handle scenarios where a dead body is made part of the demonstration, because a dead body becomes part of the demonstration only in the most extreme circumstances. And it is the government that must take the moral blame for having driven people to that extreme circumstances. Now, if Rajasthan government simply can't handle, the political party can't handle such pressure, what prevents them from simply resigning and going home? Someone else will take their place. And this also, a law like this, when the legislature comes together to make a law like this, it also reflects a great deal on what they think about the judiciary. They probably think that sheer rubber stamps are sitting in the judiciary, that they will simply pass a law like this, because if they had even the slightest hesitation that they would be severely rebuked in a court of law, they would not have done this. So I think the judiciary in this country also has to do some soul searching and ask, look, what is the kind of impression that we are giving out to the people of this country, that you have a very big state like Rajasthan come out with a law of such nature? This is not what a meaningful or a reasonable, legislature would do. This is someone that's pervert in mind would come out with. This is a law that only a pervert can think about. I'm sorry to say this, but there's no milder way to put it. You need a complete pervert to even imagine and to give shape and effect to a law like this. And that's what the Rajasthan government has done. स्वर्णिम चतुर्वेदी, कुछ कहना चाहेंगे? 2 कॉलर आए हैं हमारे पास, दिल्ली से, रोहतक से और मुंबई से. उनका राजस्थान से बहुत कम लेना देना है, इनफैक्ट कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो तक इस स्टेटमेंट को बेहुदा बोल रहे हैं. जो लॉयर हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं दैट दिस प्रोबेबली विल नॉट इवन स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी. अगर दिस लॉ इज चैलेंज्ड in the High Court or in the Supreme Court, it will be struck down immediately. ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे लॉज नहीं लाए जाते, चतुर्वेदी जी.
देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब सुमित जी बोल रहे हैं तो एक सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन एक यहाँ पे एस्पेक्ट और भी है। वो एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट जो है राजस्थान में हमने देखा है ट्राइबल एरियाज में, सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होता है या अदर फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट भी बॉडी को रख के प्रोटेस्ट करते हैं कंपनसेशन के लिए अपने दूसरे फैमिली मेंबर से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अभी सुमित जी जिस एरिया से आते हैं, बीकानेर से आते हैं, वहीं पे कुछ समय पहले हुआ था, एक ने पुजारी ने सुसाइड कर लिया था। वहां पे उसने बीजेपी एमपी से, जो बीजेपी के एक नेता हैं, उनके अरेस्ट के लिए वहां पे लोगों ने बॉडी रख करके प्रोटेस्ट किया था। लेकिन प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन बॉडी रख के प्रोटेस्ट करना अलग चीज है। बॉडी को अगर आप रखते हैं तो बॉडी रख करके आप उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये गलत चीज है, ये गलत परंपरा है, इसको रोकना ही होगा। प्रोटेस्ट करने के अपने तरीके हैं, अपने काम है, कोई भी राजनीतिक दल हो या लोग हो, सब करते आए हैं। लेकिन बॉडी को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, अगर कोर्ट में कोई बात आती है तो बिल्कुल उसका स्वागत होगा, लेकिन तो हमारी मंशा साफ है। हमारी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि वी शुड ऑनर आवर डेड। जो डेड बॉडी है, इट शुड बी ऑनर्ड, लास्ट राइट शुड बी परफॉर्म। और उसके अलावा यदि कोई प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट के लिए कभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मना नहीं किया। कांग्रेस कभी प्रोटेस्ट को मना नहीं करती है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट इज ऑर्नामेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हम इस बात को मानते हैं और बिलीव करते हैं, और इसमें हम कायम हैं। लेकिन डेड बॉडी को डिसरेस्पेक्ट करना यह गलत है, यही हमारी मंशा है, इसमें और कोई हमारा इरादा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, डेड बॉडी को डिसरिस्पेक्ट परिवार करेगा क्या जानबूझ के? वो परिवार जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया है, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, माँ पिता, ऐसी फैमिली अपने अपने पिता की डेड बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करेगी, अपने भाई की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करेगी? वेयर इज, आई वांट टू अंडरस्टैंड वेयर दिस थॉट इज कमिंग फ्रॉम मिस्टर चतुर्वेदी, कि आपको लग रहा है कि अगर कोई परिवार 6 दिन अपने प्रियजन की डेड बॉडी बाहर लेकर, सड़क पे लेकर उसको क्रिमेट नहीं कर रहा है, उसके साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शौक के लिए कर रहे हैं ये सब, या सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए कर रहे हैं, या सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे तो राजस्थान में जितने भी प्रोटेस्ट की हुए डेड हैं, बॉडी वो लेकर क्यों प्रोटेस्ट बैठता है? केवल क्यों बैठता है, आप मुझे बताइए, क्यों बैठते हैं? मैं बता देता हूँ मतलब आपको, देखिए। अनलेस यू आर पुश टू अ कॉर्नर, नो वन, चतुर्वेदी जी, अनलेस यू आर पुश टू अ कॉर्नर, नो family member in their right minds will sit with a dead body to protest for no reason. It's only because that is your last resort, because the system is failing you, that you're forced to do what you're doing. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जितने प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट क्या केवल कंपनसेशन के लिए, क्या केवल अगर आप देखेंगे, आप ये रिकॉर्ड उठा करके देखिए, राजस्थान में कंपनसेशन के लिए या किसी इस कारण से नहीं हुए कि गवर्नमेंट की कोई कमी थी, सरकार के मशीनरी में कमी थी, गवर्नेंस में कमी थी। वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, जब बैठते हैं लोग और कहते हैं कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स को आप जो है गवर्नमेंट जॉब दीजिए, हमारे फैमिली मेंबर्स को जो कंपनसेशन जो मिलता है, जो लीगली दिया जाता है, उसके बजाय उससे 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना कंपनसेशन दीजिए। ये सारी चीजें हुई हैं, और ये किस कारण से हुई हैं, उनको किसने समझाया? वहां पे वो बैठते हैं, पीछे उनके पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता लग जाते हैं, और वहां पे तो आ करके उनका साथ बैठते हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं। वहां पे किसी को न्याय चाहिए, न्याय किसी को ऐसा नहीं है कि ना मिला हो। कोई राजस्थान में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी विक्टिम का अगर कोई सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने न्याय दिलाने में कसर छोड़ी हो। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को तुरंत पकड़ा है। कोई ऐसा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं कर पाई। को जो कहना चाहिए जिसने अपराध किया उसको हमने नहीं पकड़ा हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन अगर वहां पे बैठ करके ये कहें कि हमारे जो व्यक्ति है इसके फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन, 50 लाख का कंपनसेशन, या 2 फैमिली मेंबर्स को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, यह गलत है। न्याय अलग चीज है और इस तरह की बात अलग चीज है। न्याय देने में राजस्थान सरकार कभी कोई कसर नहीं छोड़ती है। और मैंने आपको बताया, इस तरह का सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट में भी हुआ है। तो सबके साथ जब समस्या हुई है तो इस तरह के लोग जब इस तरह से करने लगे, जस्टिस के लिए नहीं, अगर जस्टिस चाहिए तो जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस छोड़ करके
अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भुनाने के लिए अगर कोई आता है वो गलत है, उसी के लिए ये लॉ है। तो हम ये मानते हैं कि डेड बॉडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डेड बॉडी का आप सम्मान करिए, डेड बॉडी को ऑनर करिए, उसको लास्ट राइट्स उसको क्रिमेट करिए, लेकिन अगर उसकी बजाय आप ठीक है। अपने स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं डेड बॉडी रख करके, वो गलत है। प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल करें, लोग इकट्ठे होकर के करें, चतुर्वेदी जी, फैमिली मेंबर्स करें, उनके आपने अपना सपोर्टर्स पक्ष करें, रखा। गलत है तो लोग आएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नहीं, डेड फैमिली बॉडी मेंबर्स को को रख तो आपने करके आउटलॉ कर आप पे दिया है, दबाव बनाने का काम आउटलॉ कर दिया। नहीं तो दबाव तो बनाना ही पड़ता है ना, नहीं तो सरकार, पुलिस, सिस्टम कहाँ सुनती है आम जनता की, कहाँ सुनती है सिटीजन्स की। चतुर्वेदी जी, यू आर पार्ट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, आप कांग्रेस में, आपका काम हो जाता होगा, आम जनता का काम नहीं होता है। जरा रुकिए, आपने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपने अपना पक्ष बहुत साफ साफ रखा है हमारे चैनल पे। अब जरा 3 कॉलर्स और ले लेते हैं और सुनते हैं कि वो आपके एक्सप्लेनेशन और आपके पक्ष को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। वी हैव राकेश हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। राकेश, गुड इवनिंग, प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग, नमस्कार। बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है और सबसे अनफॉर्चुनेट है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी करेक्ट लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो कि सिस्टम का कहीं पे फेलियर है, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, उसके प्रति जो भी पास में चाहे कांग्रेस या किसी भी गवर्नमेंट रही हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या बोली है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो, क्योंकि कोई भी, जैसे आप बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट तभी करेगा जब उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो वो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, लॉ में भी ये होना चाहिए। अगर वो गलत है इन्वेस्टिगेशन के बाद तो उसका कोई कंपनसेशन भी विड्रॉ हो जाना चाहिए, या अगर करेक्ट है तो जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके प्रति भी क्या कोई लॉ है कि भाई उनको भी क्या पनिशमेंट मिलेगी। आप फैमिली को तो पनिश कर रहे हैं, जो उसके पीछे उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो पनिश कर रहे हैं, पर जो एजेंसी जो इसको, जिनकी ड्यूटी बनती है कोई भी एलिगेशन को इमीडिएटली, क्विकली, स्विफ्टली रिजॉल्व करना, उसके प्रति सरकार का क्या रवैया? ठीक है राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। संजय इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम। संजय, गो अहेड, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रेया। तो माय पॉइंट इज श्रेया, प्रोटेस्ट करना, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस, दे आल्सो डू द प्रोटेस्ट, दे आल्सो डू द प्रोटेस्ट ऑन द सिली थिंग्स। वो पार्लियामेंट में वर्किंग प्रोसीडिंग नहीं करने देते बिकॉज ऑफ देयर प्रोटेस्ट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इफ somebody is got dead in somebody's family and he wants to protest with or without body, it doesn't even matter. Basically his intention behind that protest is to register his concern. Now if you उसको ही पनिश कर दोगे who is trying to protest for certain their sensible topics, तो फिर आप जस्टिफिकेशन कैसे करोगे? आप कैसे किसी को जजमेंट दिला पाओगे? तो दिस इज वेरी ब्लंडर और सरप्राइजिंग है कि ऐसा कोई डिसीजन किसी एक स्टेट में हो रहा है। तो दैट्स माय व्यू पॉइंट एंड आई एम कंप्लीटली एग्री विद द प्रीवियस कॉलर राकेश। आई एग्री विद यू। I agree Sanjay, thank you very much. Ashok is calling us from Pune. Ashok, go ahead please. Good evening. Madam, good evening. See, the person who has been trying to justify the law, the only a person with what हम हिंदी में बोलते हैं कि जिसकी गेंडे की कातड़ी हो, वैसे ही वो आदमी ये इस तरह की बात रखना चाहता है। देखिए कि जो आदमी जिंदे आदमी के लिए जस्टिस नहीं दे रहे हैं, वो अभी बात कर रहे हैं कि मुर्दे का हम सम्मान कर रहे हैं। When they are not trying to give the honor to the live people who have been suffering, who are not getting justice, वो उनको बगल में रख के वो मुर्दे को अभी ये सम्मान देने की बात कर रहे हैं। What sort of justice they are talking about? This is all draconian and it is going against the law, against the constitution. And this is being passed in the parliament of the Rajasthan. It's really shame on the people of the Rajasthan as well as the country also. क्या बात कर रहे हैं? Okay, thank you very much Ashok जी। जो बात करते हैं आप complete your point, बोलिए। My point is, the person who is trying to justify, कोई भी एक sympathetic person
cannot say like this. तो किसी गेंडे की कातड़ी के आदमी ही ऐसा कोई ड्रैकोनियन लॉ जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता. चलिए अशोक जी, थैंक यू वेरी मच. स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, क्योंकि आपके मंत्री ने ये बोला, शब्द का इस्तेमाल किया है, धंधा बना के रखा है, डेड बॉडीज को धंधा बना के रखा है. आपने सुना व्यूअर्स क्या बोल रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और अशोक जी पुणे से बोल रहे हैं कि अगर आप जीवित समय में लोगों का सम्मान करें वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन वरिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ डेड बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं उस औरत के ऊपर आना चाहती हूं जिसने सुसाइड कमिट किया, अपने आप को जला के, क्योंकि जब वो जीवित थी तब आपने उसकी डिग्निटी का सम्मान नहीं किया, तब पुलिस ने उसकी डिग्निटी का, उसकी गुहार का सम्मान नहीं किया. उसकी 17 साल की बेटी मिसिंग है, बार बार वो लड़की औरत बोल रही है मेरी बेटी मिसिंग है, उसे ढूंढो ढूंढो. पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी जब वो जीवित थी. आपने जीवित इंसान की तो सुनवाई नहीं की, उसकी डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा, आप उसकी डेथ में उसकी डिग्निटी की बात कर रहे हैं. हिपोक्रिटिकल है चतुर्वेदी जी ये. देखिए, मैंने आपको कहा, बार बार एक्सप्लेन किया कि कोई भी व्यक्ति, इफ समबडी इज प्रोटेस्टिंग जस्ट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, अगर डेड बॉडी रख करके इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, या कंपनसेशन जो मिलता है 5 लाख रुपीस, उसकी जगह फीस डिमांडिंग ₹50 लाख फॉर द कंपनसेशन, दैट इज नॉट जस्टिस. जस्टिस Chaturvedi ji, your bill is completely outlawing any protest. Not protests that are seeking compensation or government jobs, and there is no harm in seeking that. But they are outlawing every protest with a dead body. Sir, your bill is very clear. It is outlawing any protest with a dead body. 2 years of prison, 5 years of prison. We are very clear, we want honor for the dead body. कोई भी व्यक्ति अगर उसको ये है कि अगर जस्टिस नहीं मिला है, पुलिस ने गलत काम किया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये कहाँ का जस्टिस है कि अगर किसी क्राइम में अगर जो क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, पकड़ा जाने के बाद जेल में है, उसके बाद अगर वो डेड बॉडी रख करके वहां पे कंपनसेशन के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रोटेस्ट करता है और डेड बॉडी का इस्तेमाल करता है, ये गलत है, ये गलत है, परिपाटी गलत है. हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है. We are not against the protest, but we are in favor of honor of the dead body. इस तरह के प्रोटेस्ट जो पॉलिटिक्स के लिए किए जाते हैं, सुर्खियों के लिए किए जाते हैं, या फिर जस्टिस छोड़ करके अन्य पर्पस के लिए किए जाते हैं, ये गलत है. हम केवल इसके लिए बिल लाए हैं, और निश्चित रूप से हम ही नहीं लाए, सभी गवर्नमेंट जो है इस तरह के केसेस में, इस तरह के केसेस में भले ये बिल ना रहा हो, उन्होंने बुक किया है, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्टर्स जो जस्टिस के लिए ना डिमांड ना कर रहे हो, जस्टिस की बजाय अन्य कोई उनकी डिमांड हो, उसके लिए जब प्रोटेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वो बुक भी किए गए हैं. सिर्फ हमने ही नहीं, अक्रॉस द कंट्री आप देखेंगे सभी गवर्नमेंट्स ने उनको बुक किया है. हम बिल लेके आए केवल और केवल इसलिए कि जो नहीं, लेकिन अक्रॉस द कंट्री नहीं, आपका बिल नायाब है. ओके चतुर्वेदी जी, एक तो आपका बिल नायाब है. योर बिग बिल इज नॉवल in the way that no other state in this country has a bill like this. And maybe there's a reason. The Rajasthan government needs to think that maybe there is a reason why no other state in the country has a bill like this. In fact, there is no bill like this anywhere in the world. तो ये बड़ा नायाब किस्म का बिल है. KV Dhananjay, I'm out of time. I have exactly 10 seconds. But would you want to respond to what the Congress spokesperson here is saying? The presumption is that everyone who's sitting out on the streets with dead bodies of their loved ones is doing it out of greed, is doing this out of lalach, is doing it out of some amount of political pressure. कि सिर्फ ये लोग जो है compensation चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, इसलिए ये अपनी dead body, they are using this dead body as a tool for blackmail. I mean, as I said, we elect our representatives. They are expected to convey some degree of empathy when they represent us in assemblies and parliaments, and yet look at the sort of words that Mr. Dhariwal is using. Dhanda bana ke rakha hua hai. Let us pity him, and I think the Rajasthan government should probably appoint some kind of a robot to justify this. It should not put a human being to justify a law like this. There are these artificial intelligence robots. Something like that should come forward to justify it. It should not be a human being. Let's pity him.
Okay. Mr. Dhananjay, we'll leave it there for the moment. Thank you very much. Swarnim Chaturvedi, you have defended your case well. Thank you very much. We don't agree with you, but you have defended it well. And Sumit Chaudhary, thank you very much for joining us as well. I hope, given the fact that the BJP is opposing this bill, I hope that someone from the BJP goes to the Supreme Court or the High Court, at least in Rajasthan, to challenge this bill in a court of law. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. Slipping into a quick break on the show. There's more news coming up on the other side. We have news from Manipur now. Do stay with us.